my new live class. And in this class, friends, we are going to cover weekly current affairs. Okay, and this is first week of January. That means ki I'm going to cover the current affairs related to first week of January 2022. And this class is presented by me, Prabhakar Jha sir. Okay. सो इस क्लास में जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा वीकली करंट अफेयर्स जो जनवरी के फर्स्ट वीक का दैट मीन्स की कल तक का जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगा उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू प्रीवियस क्लास और इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू योर स्ट्रैटेजी योर प्रिपरेशन सो फील फ्री टू आस्क। आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, डोंट हेजिटेट, आप लोग को हिचकना नहीं है, आप लोग मुझसे पूछिए एंड आई विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। ओके, so if you have any doubt so please ask। and anyone, do you have any doubts related to your preparation related to previous classes? And I can see there is lots of new faces। okay, yeah, Nirmal hai. Sir, I have doubt in history, sir. Which part to focus? Medieval history or ancient or modern? Modern history. You'll have to focus on modern history if you'll go through the UPSC this year paper। okay, Yes, sir. so we have covered in socio-religious movement. There's a direct question related to socio-religious movement and specific with Brahmo Samaj, and then there's also you can say ki you'll have to we have discussed na young Bengal movement in Yes, history। sir. okay, so there is direct question। so modern India आप लोग को भी ध्यान में रखना है कि modern India जो है बहुत ही important है। प्रीलिम्स में भी इफ यू विल गो थ्रू द प्रीलिम्स पेपर आफ्टर एनालिसिस, जब आप प्रीलिम्स पेपर को देखोगे तो उसके बाद क्या होगा, यू कैन अंडरस्टैंड कि यस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, not only for prelims, it is also important for your mains examination। yes, anyone, do you have any doubt? If you do not have any doubt, I will start my session। yeah, please tell me, you'll have to participate if you are okay, if you are new and it is your first class। okay, you'll have to participate if you are going to prepare for UPSC। that means you'll have to participate, you'll have to deliberate your point, you'll have to explain your point। okay, please keep in the mind। so according to me, no one have any doubts। okay, so let's start our session। so first of all, I told you ki this is week 4, okay, first week of current affairs of January month। and in this week, friends, there's lots of topic, okay, which is very very important and I have covered in slides, but I will try to cover the topic as per the prelims and also for mains। so let's take example ki which topic is important for this you can say for last week, Indian wheat export। okay, then low cost semiconductor material, government initiative and tribal welfare, this is one of the most important topic। Indian pangolin, okay, Indian pangolin is very very important, you will have to keep in the mind। and then friends, there is also lots of important topic। then government also I told you like statehood demand, Puducherry demanded for the statehood, and then China assertion in Arunachal Pradesh, in Rajasthan lignite mining is in news, then air sports policy, okay, draft national air sport policy, IS Vikrant is in news, then there were news related to batteries and upcoming election, okay, in 5 states, you will have to understand what are the what should be the precaution and also what should be the you can say ki step for the betterment of the you can say na ki election। and then friends, there were news related to medical termination of pregnancy। okay, there's lots of news, so I will try to complete one of the most important news for this week, and after that also you can go through the slides, and if you face any problem you may okay contact and you may also ask and don't hesitate। so let's start with the first topic of this class। it is very very important। so as you can see here, okay, the topic is Indian wheat export, what Indian wheat export, and one of the most important topic, and why this topic is important, you will have to understand, okay,
So basically, friends, as you know, the agriculture topic is related to general studies paper. ओके वन दैट मीन्स की फॉर यूपीएससी मीन्स आप लोग को भी पता होगा कि जो एग्रीकल्चर की अगर आप बात करते हो तो ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही में मेंस के लिए। और मेंस में ये जो टॉपिक आता है वो इंडियन इकोनॉमी में भी आ सकता है, और ये आपका यूपीएससी का जो जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है उसमें भी आ सकता है। आप लोगों ने टॉपिक देखा है यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर? डिड यू गो थ्रू दिस ईयर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन पेपर N1? डू यू हैव एनी आइडिया? प्लीज ट्राई टू टेल मी। आप बताओ तो सही मुझे। नो सर। नो सर। ओके, नो वन। No, that's not great. You'll have to go through. If you are preparing for UPSC and state service, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मेंस का पेपर देखना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा है, what is the trends, which types of question is important, which topic is important. If you go through the UPSC, okay, this year paper, means paper, you can understand, आप समझ सकते हो कि जो NCERT और करंट अफेयर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NCERT and current affairs is, you can say ना कि one of the most important aspect for your examination. So बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज पेपर 1 का क्वेश्चन उठा के देख लो, जनरल स्टडीज पेपर 2 का क्वेश्चन आप देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से या आपके यूपीएससी जो है करंट अफेयर से पूछा हुआ है। ओके, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स डिस्कस कि व्हाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज। ओके, and the context is, friend, the Union Ministry of Commerce and Industry recently declared that Indian wheat export have witnessed a high rise in the financial year. That means in 2021 and 2022. That means there is an increasement in the export of the wheat. Okay, please keep in the mind. So we should know now why this topic is in news. That means why wheat in news. Basically, friends, the Indian wheat export during April to October 2021 were more than 872 million. 872 million. Okay, 872 million. बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया में जो गेहूं का जो आपका निर्यात था अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, वो आपका 872 मिलियन डॉलर से ज्यादा था। 872 मिलियन डॉलर से ज्यादा था। एंड सिंस द व्हीट एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग अप्रैल अक्टूबर 2020 वर ओनली 125। अगर आप बात करो कि 2020 की अगर आप बात करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना था, 135 मिलियन डॉलर था। आप देखो कितना इंक्रीज हुआ है। देयर इज लॉट्स ऑफ इंक्रीजमेंट। ओके, एंड also the wheat export during 2020 were 0.51 million ton. अगर आप 2020 की अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कितना था, 0.51 मिलियन टन जो था, ये आपका जो हम लोग कहते हैं कि 2020 में ये था। लेकिन जो अगर आप बात करोगे 2021 क्या, तो ये हो गया 3.2 मिलियन टन। 2021 में अगर आप देखोगे तो 3.2 मिलियन टन जो है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया है, ये नंबर इंक्रीज हो गया है। ओके, एंड इंडिया व्हीट एक्सपोर्ट्स आर सेंट मेनली टू अफगानिस्तान। प्लीज कीप इन द माइंड, मेनली टू कहां, तो ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान में ये भेजा जाता है। देन उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल में भी ये आपका जो एक्सपोर्ट किया जाता है। जो बांग्लादेश है, ओके, बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एंड देन जो दोस्तों अगर आप बात करते हो श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, यमन, ओमान, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन सभी में भी भेजा जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इन सभी कंट्री में से, among all the other countries, Bangladesh has emerged as the largest importer of Indian wheat. इन सभी कंट्री में से अगर आप देखोगे तो जो बांग्लादेश है
वो सबसे बड़ा इंपोर्टर हो गया है। किसका? भारत की जो गेहूं है उसका, मतलब कि इंपोर्ट वो करता है और हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत सबसे ज्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट, इंडिया यू कैन से लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट टू द बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ जो है इंडिया आपका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। यू नो, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट। इंडिया जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट आपका प्रोड्यूसर है व्हीट का। किसके बाद? आफ्टर चाइना। आफ्टर चाइना, आफ्टर चाइना, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसके बाद? आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। एंड इंडिया प्रोड्यूसेस, जस्ट अ मिनट, India produces about 107.59 million tons annually. How many? 107.59, okay, million, just a minute, million tons annually. You will have to keep it. आपको ये ध्यान में रखना होगा कि भारत जो है आपका 107.59 मिलियन टन जो है व्हीट का आपका एनुअली क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। एंड स्टिल इंडिया इज नॉट प्रेजेंट अमंग द टॉप 10 wheat exporting countries. Why? Because a major part of Indian wheat production goes towards domestic consumption. आप देखो कितना इंक्रीजमेंट तो हुआ है, बट इंडिया इज नॉट इन द पार्ट, इंडिया इज नॉट इन द टॉप 10 कंट्रीज, इंडिया इज नॉट इन द टॉप 10 कंट्रीज। व्हाई? बिकॉज इंडिया का जो व्हीट का डेमो आपका प्रोडक्शन जो होता है उसमें ज्यादातर क्या होता है? डोमेस्टिक कंजप्शन होता है उसका। क्या होता है? डोमेस्टिक कंजप्शन जो है उसका कर लिया जाता है ना। बिकॉज इंडिया का पॉपुलेशन भी आप लोग को पता ही होगा, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक वैसे ही वी हैव डिस्कस एंड आई टोल्ड यू इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट इन द इंडिया आफ्टर चाइना, सॉरी, व्हीट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। So this is very, very important. Okay. And friends, however, the Indian wheat export growth rate has surpassed that those top 10 countries in 2021. Okay. And there is an organization, APEDA. We'll have to keep in the mind about what APEDA, A-P-E-D-A. APEDA. This is very, very important. Okay. And APEDA stands for Agriculture प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपेडा है जिसका मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड ये जो है आपका एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो आपका व्हीट का जो ग्रोथ हुआ है उसमें, सो बेसिकली अपेडा प्लेड अ मेजर रोल इन अचीविंग दिस ग्रोथ रेट, ओके। And APEDA organize business to business, B2B. What? Please keep in the mind. APEDA organize B2B. Okay, business to business. What? Business to business. Okay, exhibition in various countries and explore new potential market, and initiated market campaign that promoted Indian wheat export. Okay, होता क्या है? जो अपेडा है वो इंडिया के एक्सपोर्ट को लेकर के, इंडिया के एक्सपोर्ट मतलब किसको एक्सपोर्ट को लेकर के? गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर के, क्रॉप्स के एक्सपोर्ट को लेकर के बहुत जो है आपका काम करती है। कौन? अपेडा। एंड आई टोल्ड यू अपेडा, एंड अपेडा मींस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके। एंड अपेडा वाज असिस्टेड बाय द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन एम्बेसी अब्रॉड। जो अपेडा है, अगर आप बात करते हो, इसको आपके इंडिया के जो एम्बेसी होते हैं या जिसे हम लोग एम्बेसडर भी कहते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है? आपको सपोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? सपोर्ट किया जाता है। ओके। एंड यस सिद्धार्थ, What is the meaning of embassy, sir? embassy means diplomats. If you will crack the UPSC examination and if you are interested in foreign service, so you can be, okay, the ambassador. That means you will be the part of the embassy. There is a two words, ambassador, sorry, diplomats, then also ambassador. Okay,
So basically ambassador in Commonwealth countries and diplomats in other, you can say कि दूसरे कंट्री में जो Commonwealth कंट्री के अलावा जो कंट्री से डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसी दैट इज फॉरेन सर्विसेज। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है कि जो इंडिया का व्हीट एक्सपोर्ट हुआ है इसमें इंडिया के जो एम्बेसी है वो भी आपको क्या करता है, मदद करता है। किसको मदद करता है? वो आपको मदद करता है। किसको? जो एम्बेसी होते हैं उनको मदद करता है। ओके, सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैसे इंडिया का जो व्हीट है वो आपका इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स एक्सपोर्ट जो है आपका इंक्रीज हुआ है। सो एनीवन कैन यू टेल मी अबाउट द फैक्ट्स रिलेटेड टू व्हीट? एनीवन, कोई भी गेहूं के बारे में जो आपका फैक्ट्स बता सकता है? मैं आज हिंदी में भी डिस्कस करूं बिकॉज आई गॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सर यू विल हैव टू you can say na ki discuss in both English and Hindi, so I am doing this. Okay, anyone can you tell me the fact related to the wheat? गेहूं से रिलेटेड फैक्ट आप बता सकते हो? No one? Oh guys, you are preparing for UPSC. Okay, no problem, I am going to tell you. So please keep in the mind, first of all, wheat. What is wheat? Wheat is a major, okay, please keep in the mind what wheat is a major, okay, cereal. Also you can say ki wheat is also wheat is a major cereal crop. Okay, wheat is a major cereal crop and wheat is the second most important staple crop of India after rice. After rice, this is very very important, you will have to understand. Okay, what step? Okay, so what is the wheat? Wheat is the second most staple crop after paddy. That means अपने इंडिया में क्या होता है, जो धान जो चावल के बाद सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है? गेहूं का उपयोग किया जाता है। And it is consumed by around 65% of the Indian population with chapati as its most common form. That means कि अपने भारत के लगभग 65% लोगों के द्वारा इसे आपका चपाती, that means की रोटी जिसे आप लोग कहते हो, उसके रूप में इसे आपको क्या किया जाता है, कंजम जो है आपका किया जाता है, तो वो किया जाता है। And also wheat is a rich source of vitamins, proteins and carbohydrate. अगर आप बात करोगे कि ये आपके बहुत सारी चीजों में रिच है, किसमें? विटामिन में है, कार्बोहाइड्रेट्स में है, प्रोटीन में है ना। एंड व्हीट की अगर आप बात करते हो तो व्हीट जो एक आपका क्या है, रबी क्रॉप है। क्या आपका जो व्हीट इज अ रबी क्रॉप दैट इज सोन ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर एंड इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अप्रैल मई। ये आपको कब लगाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और अप्रैल मई के बीच जो है दोस्तों इसे आपको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काटा जाता है, इसको काटा जाता है। एंड व्हीट रिक्वायर्स fertile black or loamy soil for cultivation, but its water requirements are lesser than that of the paddy crop. जो wheat है उसमें आप देखोगे ब्लैक सॉइल या लोमी सॉइल की जरूरत होती है, लेकिन धान के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं इसमें क्या होता है, आपको जो कम वाटर की जरूरत होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए हो जाएगा जो मैंने अभी आप लोग को बताया। And it is mostly cultivated in states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ओके, जो व्हीट की बात मैंने आप लोग के साथ किया, और इन सभी में सबसे ज्यादा जो आपका प्रोड्यूसिंग जो किया जाता है वो पंजाब जो है वो आपका सबसे ज्यादा, क्या पंजाब जो है आपका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? गेहूं को जो है पंजाब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सो पंजाब का जो रैंक है दोस्तों वो आप देखोगे वो क्या है, आपका सबसे ज्यादा है। पंजाब जो आपका क्या करता है, सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन करता है। वी हैव डिस्कस्ड। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मेंस एनालिसिस कि व्हाट इज द इंक्रीज इन व्हीट प्रोडक्शन, विल हैव टू नो अबाउट। सो एज यू कैन सी कि wheat is one of the key players that help India achieve its food security and food sufficiency.
इस साल भी आपका जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। आपका जनरल स्टडीज जो पेपर 3 है उसमें यूपीएससी आस्क, ओके, यूपीएससी आस्क अबाउट व्हाट फूड सिक्योरिटी एक्ट, सो यू विल हैव टू कीप इन द माइंड। एंड आल्सो फ्रेंड्स, व्हीट, गेहूं जो है वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट की प्लेयर्स है जो इंडिया के फूड सिक्योरिटी को अचीव करने में, या इंडिया को इसने हेल्प किया है किसमें, फूड सिक्योरिटी को, फूड सफिशिएंसी को सॉरी अचीव करने में। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू कीप इन द माइंड। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो व्हीट का प्रोडक्शन है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि अपने भारत में पंजाब क्या है, पंजाब इज द आपका कह सकते हैं ना फर्स्ट स्टेट इन प्रोड्यूसिंग इन द व्हीट। हम लोगों ने डिस्कस किया कि पंजाब जो है आपके गेहूं के उत्पादन में पहले नंबर पे आता है। एंड फॉर द मेंस एनालिसिस, जैसे आप मेंस के एनालिसिस की अगर आप बात करो, अगर आपका व्हीट का जो प्रोडक्शन है, ओके, ये क्या इंक्रीज हुआ है, इससे क्या फायदा हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी वेरी beneficial for the Food Security Act, and I told you कि this year UPSC asked about the Food Security Act, so you will have to prepare the Food Security Act. What are the features, what are the components, क्या इसके features हैं, क्या इसके components हैं, because you are preparing for UPSC, so you will have to know कि for let's take example ना कि there is a news related to प्रधानमंत्री, okay, अन्न योजना, and so Food Security Act is very very important, you will have to keep in the mind, आपको ध्यान में रखना होगा इन चीजों को। okay, and आप ये देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट जो है कि wheat production during the independence was only 6.46 million tons and India had to import wheat to feed its people, okay, and we have discussed कि more than 65% of India जो है वो क्या करते हैं, गेहूं का किसी न किसी रूप से चपाती के रूप में यूज करते हैं। And after the Green Revolution, when Green Revolution was implemented in India, and India became self-confident, also you can say कि India became self-producing countries to produce, okay, what, wheat. So at present मैंने आप लोग को बताया कि अगर आप देखोगे कि इंडिया जो है वो आपका क्या है दोस्तों, कि आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है आपका किसके बाद, चाइना के बाद। Okay, and friends, since climate change is undeniable, and extensive research was carried out to develop varieties of wheat that could produce more with less demand for waters and fertilizers. That means the HYV wheats, hybrid wheats, okay, hybrid seeds of wheat। हुआ क्या है कि जैसे जैसे आपका क्लाइमेट चेंज जो है वो आपका अनडिनाइबल है, वो होता रहता है, मॉनसून पैटर्न चेंज होते रहते हैं, इन सभी को देखते हुए गेहूं के जो नए सीड्स हैं, जो हाइब्रिड सीड्स हम लोग कहते हैं, उसको भी डेवलप करने की कोशिश किया गया है। ओके, फॉर दिस पर्पस व्हीट जर्म प्लांट्स, ओके, जर्म प्लाज्म्स that were conserved in the National Gene Bank of the India for the agriculture research for the 45 years were examined. Okay, सो इंडियन गवर्नमेंट भी अपना साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है कर रही है ताकि अपने इंडिया में जो व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ सके, व्हीट का एक्सपोर्ट जो है दोस्तों ये भी आपका बढ़ सके, है ना। एंड फ्रेंड्स ऑल्सो यू कैन सी हियर, या मनोज कुमार Sir, where is APEDA headquarter? Okay, so basically APEDA also you can say it comes under the agriculture ministry, okay, and also you can say APEDA agriculture and processed food products export development authority. It is the you can say full form of this APEDA and headquartered in New Delhi, and there is a various religious offices of APEDA. Okay, so APEDA headquarters in Delhi, and now yes, there is a research, that means scientific research related to the you can say increasement in production of the wheat. So there is a national gene bank, and in national gene bank there is a you can say new study, okay, आपका नए study होते रहते हैं, and the research was conducted during the 2011 to 22, and several resilient wheat varieties were developed that ensured good production.
And presently there are over 316 different varieties of wheat that are cultivated in India. आपका 316 से ज्यादा जो गेहूं के प्रजाति है भारत में वर्तमान में, जिसका आपका क्या किया जाता है, उपज किया जाता है. ओके, जस्ट अ मिनट. Yeah, so we have discussed there is increasement, increase in wheat production. What is the reason? And also there is a various reason. Also you can see there is a region related to fertilizer, usage of fertilizers. Okay, also you can say usage of fertilizer. And then Indian government is also focusing on new varieties of seeds. So we have discussed. So we have discussed the points related to prelims and also points related to mains examination, because this is very, very important. Now, let's come to the new topic. And the new topic you can see here, the new topic is low cost semiconductor material. Low cost semiconductor material. Okay. So we'll have to know why this topic is in news. And first of all, this topic is related to science and technology. Okay. So let's understand what is the context of this topic. क्या इसका आपका परिदृश्य है, context क्या है? Union Ministry of Science and Technology announced a research team that will develop efficient next generation low cost semiconductor materials. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या क्या है, आपका एक ऐसे कह सकते हो कि ग्रुप बनाया है, रिसर्च टीम बनाया है, जो कि एफिशिएंट और नेक्स्ट जनरेशन लो कॉस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को तैयार करेगा. क्या करेगा? तैयार करेगा. ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड नाउ लेट्स कम टू द, विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द semiconductor. We'll have to understand the meaning of the semiconductor. Anyone, can you tell me if your background is science and technology? अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या मतलब होता है सेमीकंडक्टर का. एनीवन, could you tell me? Can you tell me? या प्रज्ञा? Sir, semiconductors are the electronic device. They used in diodes and transistors and IC, the integrated circuits, like to wide applications of like power efficiency, any reliability or low cost compactness. Because of that, that we use semiconductor. Okay, very good, very good. Anyone else? Okay, no problem. So now I'm going to tell you in a, you can say in one line, कि semiconductor. What is a semiconductor? Semiconductor is a material. Material है ये आपका material, and whose conductivity properties lie between the conductor and insulator. What? इसके जो आपके एक हम लोग कहते हैं ना कि कंडक्टिविटी जो है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहता है. बेसिकली ऑल्सो वी कैन से कि अ सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल whose conductivity properties lie between the conductor and insulator. Okay, conductor, and also you'll have to keep in the mind what? Conductor and insulator. Okay, conductor and insulator. Conductor and insulator. Okay, and what are the examples of the semiconductor? Anyone, can you tell me? What are the examples of the semiconductor? There is lots of example. There is lots of example. Okay, यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे examples है. जैसे कि अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग भी देखते होंगे सिलिकॉन. ओके गैलियम, जर्मेनियम. यस यस यस, वेरी गुड.
gallium, germanium, arsenide. Okay, these are the Yes, sir. examples. There is a lots of examples of the semiconductor. And friends, semiconductor, if you will talk about the semiconductor, there are two types of semiconductor. Okay, two types of semiconductor. What? So which type of semiconductor? Intrinsic and extrinsic. Yes, very good. Extrinsic and intrinsic. Okay. And in extrinsic, there is P type, N type. So no need to know for the UPSC or the state service. Okay. And in extrinsic, there is N types, that means negative, and there is also P, okay, positive. So no need to discuss, but you'll have to keep in the mind what a semiconductor is a material which conductivity properties lie between the conductor and the insulator. Lie between the conductor and the insulator. Okay. So also you can see here what is the meaning of the semiconductor. Basically friends, अगर आप बात करते हो कि सेमीकंडक्टर्स का, तो ये क्या होता है? सब्सटेंस होता है. इट इज अ सब्सटेंस. ओके, सब्सटेंस एंड दैट कनेक्ट, आल्सो यू कैन से कि दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी is known as conductor, and while a substance that cannot conduct electricity known as insulator. So basically it is a substance that has properties in between a conductor and an insulator. And Partially conducting भी हुआ ना, partially conducting. yeah, yes, partially connecting. Okay. And also a semiconductor can conduct electricity under desired condition. Okay, under desired condition. आप जिस condition में चाहोगे, तो basically हम लोग कह सकते हैं under desired condition. Okay, desired condition, because this is very, very important. This is the concept and you'll have to understand. And yeah, what is the, yes, Siddharth? desired means Okay, जो अभी आप सर चाहोगे. अभी सर आप बोले desired condition means ओके, बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ. बेसिकली Sure. जो मैंने बताया कि अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर डिजायर्ड कंडीशन. जिस कंडीशन में हम चाहेंगे, दैट मीन्स कि मान लो कि एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है. ओके, और मैंने आपको बताया कि कंडक्टर का मतलब क्या होगा? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट हो सकता है. जबकि अगर इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता है. तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके बीच में जो रिलेशन बनाना है, वहीं पे सेमीकंडक्टर आता है. तो सेमीकंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है जैसे हम चाहे, अंडर डिजायर्ड कंडीशन जिसे कहते हैं. डिजायर मींस होता है चाहना. ओके, एंड दस इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन कंट्रोल मैनर एज डिजायर. मतलब कि जैसे हम उसे कंट्रोल करना चाहते, उसी हिसाब से हम सेमीकंडक्टर का भी यूज कर सकते हैं. बेसिकली आपको भी पता होगा कि सेमीकंडक्टर इज यूज्ड टू मेक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, diodes and transistor that are used as components of electronic appliances. Okay, जो सेमीकंडक्टर जो होता है उसका यूज किस में होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट में. मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ तो पहले आपका इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो उड़ जाएगा, मतलब कि खराब हो जाएगा, तो उससे फिर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. तो बेसिकली एक सेमीकंडक्टर जो है उसका जो यूज होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, डायोड्स में, ट्रांजिस्टर्स में, एंड दैट आर यूज्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ electronic appliances. You can say na ki appliances. Okay, Sir, all the digital products like mobile yes. phones, digital Yes, cameras, yes. television, Yeah, washing laptop, machine, digital camera, washing Yeah. machine, whatever. LED Okay. bulbs also. Yes. Yeah, there will be a semiconductor. Okay. So basically semiconductor is very, very important and for your upcoming examination also. And there is a wide range of application. जो सेमीकंडक्टर होता है उसका उपयोग बहुत कुछ में होता है, जैसे कि अभी आपका प्रज्ञा ने बताया. ओके, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन. कम्युनिकेशन में होता है, देन कंप्यूटिंग में होता है, हेल्थ केयर में होता है, सिक्योरिटी में होता है, मिलिट्री में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, इनर्जी में होता है. तो आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या है? वाइड रेंज है. बेसिकली आपका सेमीकंडक्टर का जो यूजेज है वो आपका बहुत सारे फील्ड में होता है. ओके, अच्छा, सेमीकंडक्टर इट इज ऑल्सो नोन एज, कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज
इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे आईसी के रूप में भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट आप अपने छोटे से मोबाइल का एग्जाम्पल ले लो, वहां से लेकर के आप लेकर के चले जाओ। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, आपका स्पेस में जो आपका सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, ओके, उसमें भी देखोगे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। मोबाइल फोन ले लो, टेलीविजन ले लो, कंप्यूटर्स ले लो, लैपटॉप ले लो, या कुछ भी ले लो, ओके, सभी में इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपको मिलेगा। कई बार आपका मोबाइल खराब होगा तो क्या बोलेंगे, योर आईसी इज नॉट वर्किंग, सो यू विल हैव टू चेंज, ओके। कि आईसी में भी कई प्रकार के आईसी होते हैं, मोबाइल फोन की अगर बात करते हैं तो यू विल हैव टू नो, ओके। sorry, yeah, so I told you ki semiconductor, it is also known as IC, that means integrated circuits, or it is also known as what, microchips. It is also known as microchips, okay, chips. It is also known as microchips or integrated circuit, and they are usually made from elements like silicons, germanium, or compounds like gallium, okay, arsenide, which are highly expensive. And the manipulation and combination of these materials on a molecular level is carried out to develop different varieties of semiconductors. So Indian government, that means Science and Technology Department, set up research team and syndicate, okay, and there you can say ki research related to semiconductors. So you can see here ki the research team will be led by the Dr. Pavitra K. Nayak. What? Led by the Dr. Pavitra K. Nayak, and he is currently a reader at the Tata Institute of Fundamental Research, Hyderabad. And Pavitra K. Nayak was conferred the Swarnajyoti Fellowship for 2020-2021 by the Department SNT, Science and Technology. And the research team was announced recently, whose task is to develop efficient next generation low cost semiconductor material. So basically Dr. Pavitra K. Nayak, okay, research team will have to develop efficient नेक्स्ट जनरेशन लो कॉस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो डॉक्टर पवित्रा की नायक रिसर्च टीम आपका सेटअप किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और उनका काम क्या है, उनका काम है कि लो कॉस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है उसका आपका रिसर्च करना और गवर्नमेंट को बताना। और इसीलिए गवर्नमेंट ने आपका फिलहाल ही में 2,30,000 करोड़ ओके इंसेंटिव पैकेज जो है मेक इन इंडिया ग्लोबल हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आपका अनाउंस किया है इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस, एंड 2,30,000 करोड़ रुपीस इंसेंटिव पैकेज फॉर मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। एंड फ्रेंड्स also you'll have to know indigenous production of semiconductor is a core requirement to achieve make in India, to achieve also you can say make in India global hub for electronic in manufacturing, okay. So also therefore we can say it is necessary to develop an efficient next generation low cost semiconductor material, and this is also going to be the next step towards Atmanirbhar Bharat. So Indian government set up Dr. Pavitra K. Nayak research team, that is Dr. Pavitra K. Nayak is head of this team, okay, and the main duty and the main function जो होगा वो क्या होगा, आपका लो कॉस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल को फाइंड आउट करना और इंडिया कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है इन सभी चीजों में उसको आपको बताना। अगर आप मेंस के एनालिसिस के बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे दो चीजें बहुत ही जरूरी है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स? डोपिंग एंड सेमीकंडक्टर्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग एंड सेमीकंडक्टर? सो फ्रेंड्स टू डेवलप सेमीकंडक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम इन सब की अगर बात करते हैं तो to develop semiconductors, materials like pure silicon and germanium are rarely used. Why?
because they are added with a controlled amount of impurities due to which the semiconductors become usable. Okay, semiconductors become usable. So basically pure silicon and germanium is very important, are very important. Okay, so what is doping? Doping, it is the process where an impurity is added to a pure silicon and germanium material. So what is doping? Do you know about the doping? Doping is also important terms in the news, that means related to sports. डोपिंग जो है आपका स्पोर्ट्स को लेकर के भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं कोई मेडिसिन लेकर के, कोई एनर्जी बूस्टअप लेकर के तो नहीं करे, वही डोपिंग है आपका। अगर बात करते हो कि जो प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल होता है उसमें इंप्योरिटी ऐड करना, वही क्या है, दैट इज डोपिंग। एंड दिस एडेड इंप्योरिटी आर नोन एज डोपेंट्स। जो डोपेंट्स होते हैं जैसे कि which change electrical conducting ability of the pure materials. What? Pure materials. And most of the research is focused on developing good dopant system because the conventional dopants are inefficient and so side effects that can affect the stability of the electronic device. Okay. And the Dr. Nayak committee या Dr. Nayak group जो सेटअप किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसका काम ही क्या होगा? उसका काम होगा डेवलपमेंट ऑफ एन एडक्ट बेस्ड डोपेंट सिस्टम दैट डज नॉट लिव बिहाइंड एनी साइड प्रोडक्ट्स। दैट मींस कि उसकी एफिशिएंसी जो है डोपेंट्स का वो आपका बढ़ सके, एफिशिएंसी शुड बी इंक्रीज, वो बढ़ना चाहिए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डॉक्टर नायक जो हम लोग कहते हैं ग्रुप जो है वो आपका सेटअप किया है। डॉक्टर नायक ग्रुप जो है वो आपका सेटअप किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप बात करते हो कि अगर आप देखोगे कि ये जो अभी डोपेंट्स होते हैं, एनी डाउट? यस सिद्धार्थ? Sir, dopant system means? डोपेंट्स मीन्स डू यू नो अबाउट द डोपिंग? डोपिंग मीन्स कि अगर आपका जो रियल एनर्जी है उसमें कुछ आप एक्स्ट्रा मेडिसिन ले तो, एनर्जी बूस्टअप ले ले तो उससे आपका एनर्जी जो क्या होता है इनहांस हो जाता है, तो वो डोपिंग होता है स्पोर्ट्स में। ओके, यहाँ पे डोपेंट्स का मतलब है कि जो प्योर आप देखोगे कि जो सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम जो है उसका सीधा यूज नहीं किया जा सकता जबकि उसमें कुछ और मिलाया ना जाए, तो हम लोग कहते हैं मिक्सअप। तो जो मिक्सअप कर जो किया जाता है वही डोपेंट के रूप में जाना जाता है। ओके, Okay, sir. So yeah, I told you about the, you can say dopant. And also जो अभी डोपेंट्स है, these dopants work better than the existing class of dopants। जो पहले जो हुआ करता है उससे भी अच्छा करता है, उसमें नहीं जाना है। लेकिन आपको समझना होगा कि जो आपको करना क्या होगा, जो डॉक्टर नायक एंड उनकी जो टीम होगा उनको डेवलप करना है, विल डेवलप dopant system that can also be used in solar cells, transistors, light emitting device, LED, display, bioelectronics and several other heteroelectronics structure। डॉक्टर नायक उनकी जो टीम को जो डेवलप करना होगा डोपेंट्स, जिसका यूज सोलर सेल्स में किया जा सके, ट्रांजिस्टर में किया जाए, लाइट एमिटिंग डिवाइस में किया जा सके, डिस्प्ले में किया जा सके, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें जो है आपका किया जा सके। एंड फ्रेंड्स, द रिसर्च या दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट will bring a paradigm shift by ending our dependency of highly expensive doping materials. India can be a, so you can say ना कि self independent, जो बाहर जो खुद में self independent हो सकता है। एंड एट प्रेजेंट की अगर आप बात करोगे तो ताइवान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका, नीदरलैंड एंड जर्मनी, ओके, are leading producer of semiconductor। ओके, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर। वर्तमान में आप देखोगे ताइवान है, चीन है, जापान है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, थाईलैंड है, अमेरिका है, नीदरलैंड है और जर्मनी जो है वो आपके सेमीकंडक्टर्स के लीडिंग प्रोड्यूसर है। क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके बाद एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड ट्राइबल अफेयर्स। You can see here कि government initiative and tribal affairs, this is very important because tribal is one of the most important topic for your upcoming examination।
And this topic is related to governance. Okay, and also you'll have to keep in the mind कि 15th November declare जनजातीय गौरव दिवस. Please keep in the mind 15th November declared as जनजातीय गौरव दिवस to commemorate the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. Bhagwan Birsa Munda. Okay, and also what is the context? Union Ministry of Tribal Affairs released its year in review that focus on government initiative towards tribal affairs. So first of all, for prelims, we should know about the Janjatiya Gaurav Divas. What is the meaning of Janjatiya Gaurav Divas? Because this is very, very important. So now I'm going to tell you कि November 15, I told you ना कि November 15, what? November 15 will be observed as Janjatiya Gaurav Divas every year. And this date is dedicated to the memory of tribal freedoms fighter. And the purpose of this declaration was to ensure that forthcoming generation could realize the valor and sacrifices of the tribal freedom fighter. And 15 November also marks the birth anniversary of Birsa Munda. 15th November also the birth anniversary of Birsa Munda. Okay, birth anniversary of Birsa Munda. And this is very, very important. Okay, Birsa Munda, you'll have to keep in the mind. Birsa Munda was a legendary tribal freedom fighter. And also various scholars, according to various scholars, Birsa Munda was the first independent, or also you can say first freedom movement fighter. Movement fighter. And there were also news related to Santhal revolt. You'll have to keep in the mind. And I told you about the Janjati Divas, 15 November for the Birsa Munda. Okay, so who was Birsa Munda? We'll have to understand who was Birsa Munda. Birsa Munda was a tribe. Okay, Birsa Munda was a tribal. Okay, and tribal from the Munda tribe and from Jharkhand. Do you know कि before also you can say कि 1936 Bengal, Bihar, Odisha and Jharkhand was a part of the Bengal. That means कि हम कह सकते हैं कि आपका 1936 से पहले बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, ये सब का सब एक ही पार्ट था. किसका पार्ट था? बंगाल का. अगर आप में से बहुत सारे लोग आपके उड़ीसा के होंगे, है ना, और मैं बिहार का, मैं मधुबनी के बिहार का, तो हम लोग एक समय में दैट मीन्स कि हमारा ये सब जो है एक ही था 1936 से पहले. आपको पता होना चाहिए 1912 में जो बंगाल से बिहार अलग होता है, फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग होता है, और फिर 2000 में जो है आपका बिहार से झारखंड अलग होता है ना. हो सकता है एक समय में हम लोग जो है एक ही हो. ठीक, तो एक ही हो क्या? एक ही थे, पूरा जो है आपका एक ही था. और उसी समय में एक झारखंड एरिया में एक बहुत, झारखंड का मतलब होता है फॉरेस्ट लैंड. झारखंड का मतलब जो होता है फॉरेस्ट लैंड. एक इंपोर्टेंट ट्राइबल्स जो है आपके फ्रीडम फाइटर थे, वो थे बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर को जो है हुआ था. एंड 1875 में जो है कहा जाता है उनका जन्म जो है बिरसा मुंडा का हुआ था. एंड ही बिलोंग टू मुंडा ट्राइब फ्रॉम झारखंड. एंड बिरसा मुंडा mobilized the tribal communities of Jharkhand and Bihar against the oppressive British rule. What? Against the oppressive British rule. Okay. And Birsa Munda action forced the British government to introduce laws that were in support of the land rights of the tribals. And he had even started a faith called Bir Seth. Please keep in the mind what? Bir Seth. Bir Seth. Okay. So Birsa Munda started a faith called Bir Seth. उसने एक नया जो है हम लोग कहते हैं कि faith जो है धर्म कह लो, Bir Seth उसने start किया, and which was widely supported by the Munda and Oraon tribals communities in Jharkhand area. किसके द्वारा? जो बिरसा जो आपके ट्राइब्स था उसके द्वारा, एंड ओराव जो ट्राइब्स है अभी भी, ठीक है, उसके द्वारा जो इसे फॉलो किया गया. एंड Birsa Munda started Bir Seth against the conversion of tribals into Christianity carried out by the Christian missionaries. Okay, आपको पता होगा क्रिश्चियन मिशनरीज का जो प्रोविजन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो आपका चार्टर एक्ट 1813 में ही जो है प्रोविजन या हम लोग कहते हैं परमिशन दे दिया था, है ना. तो उसी के अगेंस्ट में जाकर के जो बिरसा मुंडा है, बिर सेथ
को इंट्रोड्यूस करता है। Birsa Munda was arrested in 1900 and was imprisoned in Ranchi jail, where he died a few months later. And even though he did not live long, and he is regarded as the deity among the tribal communities, उन्हें भगवान के रूप में जो है पूजा जाता है, उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है। So we should know about the government initiative and the tribal affair, government initiatives and tribal affairs. So this is very, very important. So I have mentioned in slide, you can see here, कि यूनियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश भगवान बिरसा मुंडा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम इन रांची, रानी गाइदिनीलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इन लुआन काओ विलेज मणिपुर, शी इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, एंड 10 such ट्राइबल म्यूजियम्स विल बी एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री। अभी तक ये पूरा डेटा आया नहीं है, तो ये ट्राइबल वेलफेयर को लेकर के काम किया जा रहा है, किसके द्वारा? हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड देन गवर्नमेंट जो है वो आपका 84 न्यू EMRS, दैट मींस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो ट्राइबल स्टूडेंट के लिए पूरे कंट्री में सेटअप किया जाएगा। एंड अपने प्रोजेक्ट में देखोगे 367 जो आपका एकलव्य मॉडल स्कूल जो है अपने इंडिया में अभी है, जो ट्राइबल्स के लिए है। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है EMRS का? तो प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ट्राइबल स्टूडेंट इन रिमोट एरियाज, बेसिकली हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट एरियाज, बट फॉरेस्ट एरियाज, ओके, फॉरेस्ट एरियाज। एंड comprehensive physical, mental and social education is imparted to the tribal student which connects them to the mainstream society. So basically government wants to connect tribal student with the mainstream society so they can understand what is the meaning of the development. And the Eklavya model residential school for tribal students are at par with Jawahar Navodaya Vidyalay, Kendriya Vidyalay and Kasturba Gandhi Balika Vidyalay. And Union Ministry of Tribal Affairs signed an MOU with Microsoft for the digital transformation for this tribal residential school. And there is another initiative of government towards tribal welfare include providing educational assistance from CBSE and CRT. Why? For better implementation of Forest Right Act 2006. इसी राइट में आपका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी बात कहा गया है, प्लीज इसको देखिएगा क्या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोवाइडिंग MSP for minor forest produce, skill development training for teachers of tribal schools and scholars for the tribal students, nutritional and healthcare programs and tribal entrepreneurs encouragement programs and livelihood programs. Okay, सो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है आपके ट्राइब्स के द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए हो जाएगा। आपको अगर मैं एक चीज बताऊं तो मेन के एनालिसिस की अगर आप बात करते हैं तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्राइब्स इन इंडिया, दैट मींस कि आपके कितने ट्राइब्स हैं, क्या क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा एक दिन की आधे घंटे का क्लास या 1 घंटे की क्लास में आपको ट्राइब्स के ऊपर ही पूरा कवर करवाऊं, बिकॉज ट्राइब्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस मींस UPSC एंड आल्सो फॉर स्टेट सर्विस। ओके, सो आई विल ट्राई टू कवर एंड बेसिकली देखते हैं मैं कब टाइम मुझे मिलता है, टाइम मतलब कि कब मुझे क्लास मिलता है कि आपका ट्राइब्स के ऊपर मैं कवर कर सकूं, बिकॉज अगर ट्राइब्स के ऊपर कवर नहीं किया जाए अकॉर्डिंग टू स्टेट्स, इन चीजों को कवर नहीं करेंगे तो बहुत क्वेश्चन हम लोग मिस कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PVTG ट्राइब्स, दैट मींस कि प्रिमिटिव वनरेबल्स ट्राइबल्स ग्रुप हु रिकॉग्नाइजेस आवर होम मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज प्रिमिटिव वनरेबल्स ट्राइबल्स ग्रुप, इन सारी चीजों की भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी टोटल, विच कमीशन, देवर कमीशन, ये सारी चीजें भी हम लोग को कवर करना है। ओके, सो आज के जो कुछ क्लास है उसमें हम लोग 3-4 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं और स्लाइड्स में सारा होगा, तो मैं स्लाइड जो अपलोड करूंगा और उसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क। मेरा जो पर्पस है वो ये है कि मैं आप लोग को प्रिपेयर करूं UPSC प्रीलिम्स को लेकर के और मेंस को लेकर के, खासकर मेंस को लेकर के या स्टेट सर्विस के मेंस को लेकर के, दैट मींस कि यू कैन इजीली राइट योर आंसर एंड यू कैन गेट बेटर मार्क्स। अगर आप लोग के पास एज होगा, अभी से अगर हैबिट हो जाए एक एक क्वेश्चन भी लिखने का, तो बहुत ही अच्छा रहेगा।